Good afternoon, everyone. Today I am starting my second practical lecture, and today we cover what are different types of operators and how we write codes with the help of operator, right? So I am sharing my file. These are my operators. First operator is arithmetic and symbols are plus, minus, multiply, divide, and last one is modulus, right? Modulo operator, we can say that. For assignment, there is a equal operator which is used to assign, right? And but we can use plus equals, minus equals, multiply equals, divide equals, modulo equals, right? So in our previous lecture, we just able to discuss about how we just add two numbers, right? We just discuss about how we add two numbers, but in this how we operate this assignment operators, right? In arithmetic operators, if anyone find any doubt, just let me know. In arithmetic operator, giving us access to write a message on your chat box. I gave the access. So if anyone have doubt how we write a arithmetic code, anyone has any doubt, just say yes or no. You can chat now. Avinash, you have a doubt. My voice is low. Now it's fine. It is audible to everyone. Clear and proper audio is. Any doubt related to this arithmetic operator? Any doubt related to this arithmetic operator? No doubt. Okay. What is the difference between divide and percent? Okay. When if we need to calculate remainder, then we use this modulus operator. This modulus operator is used when we need to calculate remainder. Like taking an example, if I have a value 7, remainder 2, what is the value of this question? Remainder is 1. So when we need like this way, we use remainder. If we need to calculate remainder, then we need to use this modulus operator, right? But when we divide this by this, then output is 3.5. If
these are a type of float, decimal type, if we are using decimal type। मतलब कहने का मतलब अगर हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.5, अदरवाइज 3, राइट। अभी क्या आएगी 3.5। जब हमने डिवाइड करना है तो ये आंसर, रिमाइंडर निकालना है तो ये। अभी फर्क, डिफरेंस पता लगा? ओके, ठीक है, फाइन। सो वी आर मूविंग टू अवर एप्लीकेशन and how we write code for these assignment operators, right? I'm sharing my application. Now application is visible to everyone, right? So for assignment operators, I have a data type int and a is 10 and b equals 20. I have assignment operator for addition is this, but how I will write in this way। मुझे किसी तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं जब मैं असाइनमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैं अगर प्रिंट करता हूँ एक ही, इसका मतलब कैसे एक्सपेंड भी करके बताता हूँ अभी। अगर मैं अभी सम लिखूँ, सम इक्वल्स परसेंट डी कॉमा ए, आउटपुट चेक करना, आउटपुट क्या आई 30, राइट, सम इज 30। तो इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल्स ए प्लस बी। तभी ए मेरे पास इनिशियली 10 था, तो उसकी वैल्यू 30 कैसे बनी, जब दोनों का सम किस में ट्रांसफर हुआ, ए में ही। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है। समझ आया सभी को? नहीं, अगर मैं एक और प्लस बी लिखता हूं तो आंसर चेंज होगा। 50, ठीक है, 30 प्लस 20 50। या लिख सकते हैं ए, यहाँ पे ए लिखा, राइट, समझ आया। अगर मैं बी लिखता हूँ यहाँ पे तब भी, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तब भी आंसर डिफरेंट आएगा, 40। तो पहले यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ही रहेगी और यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी 20। दोनों का सम हुआ कितना 30। 30 में फिर इस प्लस ऑपरेटर ने वर्क किया। इस प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज किया, यहाँ पे अभी बन गया 30। मीन्स हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन चुके हैं, ए प्लस बी, एक ये एक्सप्रेशन बना और दूसरा इसे एक्सपेंड किया। तो पहले इन दोनों का सम किया हमने, वो 30 आया, वो ऐड हुआ ए में, ए की वैल्यू 10 थी प्रीवियस, तो 40, और 40 वैल्यू किस में चली गई, ए में। अगर यहाँ पे मैं बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट प्रिंट एफ में, अगर बी इक्वल्स परसेंट डी कॉमा बी, तो अभी आउटपुट क्या आएगी बी की 20, ठीक है। बी में कोई चेंज नहीं आएगा। यस, क्लियर, ये क्लियर हुई आउटपुट। सो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऐसे ही अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंबल चेंज करना है। जस्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डाल दिया और वैल्यू चेंज कर दी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, राइट। अभी इसे कमेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइड। ठीक है, तो अभी क्या आंसर आएगा, 5। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दूंगा तो मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर डाल दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 0। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दूंगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे आउट प्रिंटिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जब आउटपुट रीड हो तो हमें रीडेबल भी हो, और दूसरी चीज हमें समझ आए कि आउटपुट किस चीज की है। अभी ये डिस्प्ले कर रहा है कि रिमाइंडर 0 है। अगर यहाँ पे डिवाइड लिखा आएगा तो डिवाइड क्या होगा, माइंड कहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो हमने मैसेज भी वही देना है, वेरिएबल्स भी वैसे ही लेने हैं जैसा हमारा प्रोग्राम होगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस, बी की वैल्यू 20 ही रहेगी, वो फिक्स रहेगी क्योंकि उसमें हमने अपडेट नहीं किया। और यहाँ पे मैं बी भी लिख सकता हूँ, रिवर्स में भी जा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे साइन मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक माइनस। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा बी, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो अभी आउटपुट क्या जाएगी, -80, नेगेटिव आंसर, राइट। क्लियर, ये देखो अनसाइंड लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, बट जो रिजल्ट आएगा वैसे ही आएगा। अभी ये क्या हो गया, ये अनसाइंड करने के कारण आया है। %u नेगेटिव वैल्यूज नहीं उठाता अनसाइंड, जब हमने डाटा टाइप यूज कर ली। समझ आया अनसाइंड कब यूज करना और कब नहीं करना, ये क्लियर हुआ। ये अनसाइंड वाला कंसेप्ट सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इट्स विजिबल। अनसाइंड में क्या है, अगर मैं अनसाइंड यूज कर रहा हूँ, राइट, अनसाइंड में क्या होगा, अगर मैं अनसाइंड यूज करूंगा तो वो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। तो उसका फॉर्मेट क्या है, एक तो यू यूज करना पड़ेगा। अगर मैं %d करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, ये सारा फॉर्मेट बेस्ड है। तो आउटपुट क्या आ रही है, -80। क्यों, क्योंकि ये %d दोनों फॉर्मेट्स को यूज करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे अनसाइंड लिखने से नहीं चलेगा वो। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी यूज करना पड़ेगा, %u, दिस इज यूज्ड फॉर अनसाइंड, तब इसकी आउटपुट। अभी ये गार्बेज वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में जो साइज है उस अकॉर्डिंग ये आया, ये पॉजिटिव ही वैल्यू हुई है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, राइट, ये गार्बेज वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन, राइट, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे उसके लिए अभी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाना पड़ेगा हमें इसके ऊपर। सभी को थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है, मैं समझाऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, डेफिनेटली आई विल, बट फॉर नाउ जस्ट हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं अगेन अब ऑपरेटर पे आ रहा हूँ। एक और ऑपरेटर है, एक 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। इट इज विजिबल, नोटपैड फाइल इज विजिबल टू एवरीवन। मैं इसी का आंसर दे ही देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ अभी, ठीक है, नहीं तो लेक्चर किसी और ट्रैक पे चला जाएगा, ठीक है। मैं वो चाहता नहीं, मैं ये ऑपरेटर खत्म करना चाहता हूँ। देखो, लेट्स सपोज करो मेरे पास 2 बाइट्स मेमोरी है, ठीक है। ये कितने बाइट्स ले रहा है, 16 बाइट्स, अपना ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट नॉर्मली मैं 2 बाइट्स की एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, ताकि इजिली समझ आ जाए। बाइट्स, 2 बाइट्स में कितने बिट्स हुए, 16 बिट्स। नेक्स्ट, रेंज क्या होगी इसकी, -3 to 6 7 6 7, सॉरी, -3 to 7 6 8 to 3 to 7 6 7, राइट, ये इसकी रेंज होगी। अभी मान के चलना ये मेरा मिड पॉइंट 0 है, इसके आगे जो वैल्यू होगी ये वो क्या होगी, +3 to 7 6 7, और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे -3 to 7 6 8, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर, बस ये मान के चलो, ठीक है। एंड अभी ये रेंज होगी मेरी इसकी। अभी इस रेंज में क्या हो रहा है, अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, ताकि मैं आपको बना के बताऊं कि अभी क्या हो रहा है। ये मेरा, एक मैंने शेप सिलेक्ट करी, ये सर्कल, राइट। अभी यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, +3 to 7 6 7, राइट। और यहाँ पे -2 7 6 8, ये चीज टर्बो में इजिली चलेगी, ये आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंट 2 बाइट्स लेता है, क्योंकि आप इजिली इस वैल्यू को याद रख पाओ और कैलकुलेट कर लो, इसीलिए मैंने ये वाली एग्जांपल ली है आपके लिए, ठीक है। अभी ये चीज है, यहाँ पे क्या आएगा, 0, सॉरी, यहाँ पे 0, और ये आपका हाफ हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका हाफ कर दिया मैंने, पूरी मेमोरी को हाफ कर दिया। इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, +3 to 7 6 7, राइट। जब इससे एक पॉइंट भी नीचे आऊंगा, वो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे हमारा वो डिग्री वाला होता है कंसेप्ट, सेम चीज वही है। तो ये पूरा सर्कल क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 के नीचे -1, ठीक है। तो अभी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे अगर मेरे पास मान के चलो इंट ए है, ए की वैल्यू होगी 3 to 6 7 7 6 7, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगी, 3 to 7 6 7, राइट। इसमें किसी को डाउट, ये आपकी आउटपुट आई, राइट। बट अगर मैं
इस ए के अंदर एक वैल्यू ये डाल दी 32768। अब क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये वाली मैक्सिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है एक वेरिएबल इंटीजर। तो उसके बाद क्या होगा, वो नेगेटिव से शुरू हो जाएगी आउटपुट। अगर मैं ये इनपुट करूंगा ए के अंदर, ये टर्बो में आप चेक कर सकते हो, अगर इस ये वाली इनपुट होगी, ये इनपुट 32768, तो आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट आएगी -32768, -32768। ये मैंने आपको बाइट्स वाले लेक्चर में बताया था, ये कैसे आया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो लेट्स, मेरे पास टोटल कितनी बिट्स हैं, 16 बिट्स। मैक्सिमम कितनी हुई, 1 1 1, ये टोटल 16 बिट्स होगी, सॉरी 8 बिट। 16 बिट्स कैलकुलेट करना तो क्वाइट हार्ड होगा अभी के लिए, तो 8 बिट्स के साथ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1, ये 2, 4, 8, 16, ये 1 बाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 32, आपने बस इंक्रीज करनी है वैल्यू, 32, 64, 128। ठीक है, ये 1 बाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 बाइट के अकॉर्डिंग है। और ये करेक्टर करेक्टर होता है 1 बाइट, राइट, करेक्टर की वैल्यू होती है 1 बाइट, और इसकी रेंज क्या होती है, -128 टू +127, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू 0 टू 127 है, तो टोटल कितनी वैल्यूज बनी, 0 टू 127, 128 वैल्यूज, राइट। और नेगेटिव में 0 नहीं आता, वो -1 टू -128 ही रहेगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो अभी, अगर किसी को यहाँ तक नहीं समझ आया जितना अभी तक बोला है। और इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अगर मैं एक वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, ये अभी समझ आया, ये वैल्यू कहाँ से आई, इसका डबल करते गए, 128 का डबल कितना होगा, 256, 256 का डबल 1512, 512, फिर 1024, डबल करते जाओगे। सो डबल करते करते कितनी वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी आपकी, आफ्टर डबलिंग पॉजिटिव वैल्यू, टोटल 0 टू, ठीक है, क्योंकि ये बाइंड इवन नंबर्स में चल रहा है, तो ये इतनी वैल्यू बनेगी, बट हमने यूज करना है 0 टू 3267, 0 से लेके यहाँ तक, तो टोटल कितनी वैल्यूज बनी, 32768, तभी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव रेंज बनेगी इसकी। ठीक है, तो अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ दोबारा, अगर मैं एक वैल्यू भी बड़ी कर रहा हूँ, ए की वैल्यू अभी मैंने ये कर दी, तो क्या आंसर आएगा, ये नेगेटिव से शुरू हो जाएगा, राइट। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं एक और वैल्यू ए को दे रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तब क्या आंसर आएगा, जैसे मैंने लिखा 32789, सॉरी 769, ये वाली वैल्यू लिखी ए की, तो अभी आउटपुट में क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है चैट पे, तो -326767। अगर मैं एक और वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, 32770, राइट, आफ्टर डैट क्या आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट बनेगी
327766 नेगेटिव ऑफ 32766। ये पीछे से वैल्यू सारी जा रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे 32 आएगा, 32700 की वैल्यू क्या आएगी, 32770 की वैल्यू ये आएगी। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये समझ आ रहा है सभी को? ये आउटपुट नेगेटिव माइनस करो ना, जब मैं इस रेंज को क्रॉस करूंगा, मैं इस रेंज को क्रॉस करूंगा, 32767 रेंज क्रॉस करूंगा, तो ए में नेगेटिव से आउटपुट जानी शुरू हो जाएगी, राइट। ये आउटपुट इस तरीके से आई है, नेगेटिव में जा रहा है, माइंड को नेगेटिव लेके जाओ। जब एक भी बड़ी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई बड़ी, 32768 वैल्यू आई, तो ये नेगेटिव कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, ये। उसके बाद फिर एक वैल्यू इंक्रीज करी मैंने, तो उससे पीछे नेगेटिव से, लेट्स सपोज करो ए की वैल्यू मेरी कितनी हुई, मैं अभी एक लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू बनी 65535, तो आंसर क्या आएगा, -1। ये कैसे पता लगा, अभी देखो, मैंने इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, ये जो वैल्यूज है 3276 और 32765, 7 + 8 आउटपुट क्या बनी यहाँ पे, 5, 6 6 12, 1 कैरी, 3 13, अगेन 1 कैरी, 7 और 7 14, 5, अगेन 5 और अगेन 6। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बनी मेरी, राइट, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, जितनी पॉजिटिव में इंक्रीज होगा उतना ही नेगेटिव में इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अभी ये रेंज बनेगी, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रेंज। जब ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 65535, तो आउटपुट में क्या आएगा, -1, राइट। बट अगर मैं एक वैल्यू और इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, अभी आपको क्लियर होगा, एक और बस एक लास्ट वैल्यू दिखाऊंगा, अभी बिल्कुल क्लियर। अगर मेरी ये वाली वैल्यू हुई 36, तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा, 0, क्योंकि अभी ये मैं अनसाइंड डाटा टाइप में पहुंच गया, ठीक है। तो ये पूरा घूम के एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, तो आंसर क्या बन गया, अगेन 0। समझ आया सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट्स कैलकुलेट हुई। नाउ क्लियर, ये कैसे आई आउटपुट, इस टॉपिक के बारे में जो मैं बाद में करवाना चाहता था मैंने अभी करवा दिया, ठीक है। ये क्लियर, बाइट्स कैसे, हमने किसी वेरिएबल की जो रेंज है उसे कैसे क्रिएट करना हमने सीखा इसमें। वन मोर एग्जांपल इसी के रिलेटेड दूं, लेट्स सपोज करो अगर मेरे पास करेक्टर है, राइट, मेरे पास एक करेक्टर डाटा टाइप है CHAR, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी कैपिटल ए, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल ए वैल्यू डाल दी मैंने, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाली वैल्यू ले ली CH के अंदर ए, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा इस तरीके से, प्रिंट एफ %C, CH, तो आउटपुट क्या आएगी, तो अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट आएगी हमारी ए, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए, राइट। बट अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखता हूँ, प्रिंट एफ %D, CH, अभी ए की इंटीजर वैल्यू आएगी, समझ आया।
अभी ए की इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल ए की इंटीजर वैल्यू क्या होती है 65, एस्काई वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से, हम किस टेबल से ली, हमने एस्काई टेबल से, ठीक है। क्या, हाँ ये भी कह सकते हैं टाइप कास्टिंग भी हुई, अनदर वर्ड वी कैन यूज टाइप कास्ट कर होगी ये इंटीजर में अभी, ठीक है। ये सारा फॉर्मेट्स के कारण हुआ। अगर फॉर्मेट परसेंट यू आ गया तो उसने क्या कर दिया, उसको जीरो पॉजिटिव वैल्यूज सारी ले ली, राइट। जब -80 आया था, जो परसेंट यू की जो मैक्सिमम रेंज थी, वो उस अकॉर्डिंग वो वैल्यू आई नेगेटिव, राइट। अभी एग्जांपल पे अगर दोबारा हूं, यहां तक समझ आया सभी को, नेक्स्ट ऑपरेटर पे आए। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट ऑपरेटर पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स, इक्वल इक्वल्स, नॉट, ठीक है। जब हमारे पास कंपैरिजन हो दो वैल्यूज का, लाइक एक्स ग्रेटर देन वाई, ये भी हो सकती है कंपैरिजन, है ना। नेक्स्ट कंपैरिजन क्या हो सकता है, वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स या नॉट इक्वल्स टू जेड, ठीक है। टेकिंग एन एग्जांपल राइट नाउ, अगर मेरे पास एक एक्स है 10 और वाई है 30, तो ये क्या रिलेशन है, अगर मैं ये रिलेशन लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स, ये बनेगा फॉल्स, राइट। एंड सी में इस फॉल्स को हम जीरो भी बोलते हैं और ट्रू को हम वन बोलते हैं। अगर मैं यही रिलेशन ऐसे लिख दूंगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, देन सेकंड रिलेशन क्या बनेगा, कंपैरिजन ट्रू होगा और यहाँ पे हम वन बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग में, ट्रू मीन्स वन, राइट। यहाँ तक क्लियर। अभी अगर मैं ये लिखता हूँ कोई कंपैरिजन y इक्वल इक्वल्स टू एक्स, मीन्स यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर 10-10 होगी तभी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स। इस तरीके से हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करने हैं। एंड अनदर एग्जांपल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब एक पर्सन अगर ग्रेटर देन उसकी एज कितनी हुई, अगर 18 हुई तभी वो वोट ऐड कर सकता है, राइट। जस्ट मैंने ये बोला है अगर दोनों की वैल्यू 10-10 होगी तभी, अगर वाई 30 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 30-30 होना चाहिए तभी दोनों रिलेशन इक्वल होंगे, ठीक है। एक्स भी 30 होगा और वाई भी 30 तभी, जस्ट गिविंग गिविंग एन अनदर वैल्यू, ठीक, राइट। एंड इस इन ऑपरेटर्स को अब हम कैसे यूज करेंगे ये भी बताता हूँ एग्जाम्पल में, अभी नहीं, पहले ये भी समझो। ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स एंड गेट, ये है हमारा एंड ऑपरेटर, ये मेरा और ऑपरेटर, राइट। You are not able to see notepad file, Mithilesh? Notepad file is visible. Notepad file is visible to everyone.
just say yes. Okay, fine. आई टर्न माई वीडियो ऑफ बिकॉज, ताकि आपको ये इशू ना आए, इंटरनेट का कोई इशू ना हो, तभी मैंने वीडियो अपनी ऑफ करी है। ठीक है। एंड अगर हम क्या कर रहे हैं, एंड एक होता है नॉट। ये आपके गेट्स भी हैं, लॉजिकल गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़े भी हैं, +2 में और या +1 में, एंड और नॉट गेट्स, राइट। एंड गेट में क्या होता है, प्रोडक्ट, राइट। और में क्या होता है, एडिशन। ये समझ आया, इनको हमने कैसे देखना है। एक और चीज देखो, लेट्स सपोज करो मेरे पास एक कंडीशन है ए और एक कंडीशन है बी, और इसका रिजल्ट क्या होगा एंड गेट में, ये आउटपुट, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एक इनपुट आई 0, 0, 1, 1। ये ए की मैक्सिमम इनपुट्स बनेंगी, ये बी 0, 1, ये 0, राइट। ये आपकी इसकी आउटपुट क्या आएगी फर्स्ट की, अगर एंड गेट है, अगर यहाँ पे ए एंड बी है, ये ए मतलब क्या है, एक कंडीशन है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, और एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। ये दो कंडीशंस होगी, ए कंडीशन इसके लिए यूज होगी, और ये एक पूरी कंडीशन, एक पूरे कंपैरिजन को हम एक कंडीशन बोलेंगे। अगर दोनों कंडीशंस के रिजल्ट क्या है, 0, 0, यहाँ पे एंड में क्या आएगा 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 1। मीन्स अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब भी हम क्या बोलेंगे, पूरी कंडीशन ट्रू है, राइट। डिसाइड हमने पता कहाँ से करनी है ये कंडीशंस, या तो ये एक्स ट्रू होगा या फॉल्स। हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या तो वो 0 होगी या 1, अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम जावा की बात करेंगे तब वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स टर्म्स यूज होती हैं, और यहाँ पे 0 एंड 1, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे और आता है, और सिंबल कहाँ से यूज करोगे, इसे हम पाइपलाइन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये एंटर के ऊपर मिलेगा आपको मोस्टली। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस है, बेंड नहीं है, कोई बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। तो इस केस में आउटपुट क्या बनेगी, 1। मीन्स अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू, राइट। और केस में, एंड नॉट केस में क्या होगा, अगर 0 होगी वैल्यू तो वो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1। नॉट, नॉट में, राइट। अगर 1 होगी तो 0, राइट। यहाँ तक समझ आया लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी इनको हम यूज करेंगे एक थर्ड ऑपरेटर में, ये इनको हमने यूज करना है किसी थर्ड ऑपरेटर में, राइट। आउटपुट जो एंड की है वो ये है, ये एंड के लिए आउटपुट है, एंड गेट। ये बस टेबल्स याद रखने हैं, और के लिए होंगे ये, बस ये टेबल्स याद रखना। अभी हम इनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, राइट। अभी मैं प्रैक्टिकली आ रहा हूँ, हमारे पास है, मैं एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूँ अपनी।
ये देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसलिए मैं भी रुक गया था इसके ऊपर। ये वो एग्जांपल है, इसकी वैल्यू अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। इसको रन करता हूँ, देखो क्या आउटपुट आई। आ गया 0। समझ आया मैंने ये क्या किया? प्लीज से यस अगर ये आउटपुट समझ आई सभी को। ये मैंने पिछली आउटपुट ली अभी। ये जो मेमोरी वाला कंसेप्ट चल रहा था उसका कोड मैंने पढ़ा था वो, तो उसी को यूज करके अभी बता दिया आपको। इज इट क्लियर? अभी ये 0 कैसे है? जस्ट मैंने 80 ऐड करा था क्योंकि पहले मैंने, अगर मैं 79 करता हूँ यहाँ पे, तो मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा जो अनसाइंड की होगी, इंटीजर जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है इंटीजर की, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, उसे अनसाइंड में यूज कर सकते हो ताकि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, राइट? बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमारा मोबाइल नंबर 4 से शुरू होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो अगेन गलत आउटपुट आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ये है ना इसकी, मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी है। अगर मैं एक भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर तो वो 0 बन जाएगा, उसके अंदर ही रिवर्स घूमता रहेगा, राइट? ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, मैंने उसमें बताया था कंसेप्ट 32767। अगर एक भी वैल्यू बड़ी होती है तो वो क्या आएगी, नेगेटिव 768, है ना? अगर एक भी बड़ी वैल्यू मैं यूज करता हूँ यहाँ पे ए को, राइट? ए के लिए मैं अगर यहाँ पे एक भी बड़ी वैल्यू करूंगा तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव में, राइट? अगर यहाँ पे मैं 9 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 67, राइट? अगर यहाँ पे मैं 70 करता हूँ, ये स्मॉल तभी ले रहा था इसीलिए मैंने उस टाइम पे स्मॉल वैल्यू यूज करी थी। यहाँ पे क्या आएगा, 66। तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अनसाइंड। अनसाइंड क्या करेगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, ये 0 टू आगे चलता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बी को अभी 80 करता हूँ तो वो 0 बन रहा है, मीन्स हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इंटीजर की। इस अनसाइंड की मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अभी। तो रिजल्ट क्या आया, 0। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब हम यहाँ पे 79 रखेंगे। और इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे 295 आएगा। अगर ए की वैल्यू 295 है तभी वो मैक्सिमम है। अभी देखो, दोबारा रन करता हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू से चल रहा हूँ, 78। ठीक है, ये क्लियर हुआ मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट, राइट? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ये देखो, ये अभी मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ली और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया,
और बी को 79 कर दिया। जब मैं मैक्सिमम वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ कुछ, वो जीरो से आगे चल रहा है, जीरो, ये 78 आउटपुट दे दी इसने। अभी क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? क्योंकि जीरो है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, सेम। अगर एक भी ऐड करो तो वो जीरो बन रहा है, जीरो के कारण वो 79 की वैल्यू 78 आ रही थी, जब मैं मैक्सिमम में 79 कर रहा हूँ ऐड। अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा यूज, तो वो जीरो आएगा, मतलब है। यस, अभी क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ठीक है। सो अभी हमने ये कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैं वही आपको वो करवाऊंगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी कोई डाउट है तो वो बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर वो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, एक ऑपरेटर यूज करके कैसे हमने रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना है। ये क्लियर सभी को, कैसे हमने किस चीज की एग्जांपल और चाहिए इसमें, इसी क्वेश्चन में? Manasvi, what you trying to saying? Learn it max value. Yes, it's a maximum value of unsigned in 10 digit. Yes, बट ध्यान रखना स्टार्ट 4 से हो रहा है, हमारे जो इंडियन मोबाइल नंबर्स है वो 9 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम स्टार्टिंग डिजिट में एक भी ऐड कर देंगे तो आउटपुट सही नहीं आएगी, डाटा नहीं स्टोर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी यूज़ करना है। ये चीज़ थी। यहाँ पे आगे फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग या डबल, राइट? उस केसेस में और बड़ी आउटपुट आ सकती है, हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यस, यू ऑल कैन लेफ्ट दिस सेशन टिल नाउ। अगर कोई क्वेरी है इसी सेशन के रिलेटेड तो हम करें, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सो अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे बताएं।